we will try to indulge AI in our life so that it makes things easy for us. Uh, it makes our journey easy for us to get successful in any field, right? In your field of studies, as well as if you're going to start a small business, how this AI can help you grow your business effectively and also beneficially, so that you should get more profit. Because if you just come into the field of business, you may witness there are like big giants जो बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट अगर थोड़ी है तो हम एआई को स्मार्टली यूज करके फिर भी अच्छा बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये एक पॉइंट होगा। एंड में हम इसकी डिस्कशन कर सकते हैं प्रैक्टिकली स्टूडेंट लाइफ में एआई जो है वो कैसे यूज होगा, कैसे स्टूडेंट्स को कहाँ किस फील्ड में हेल्प करता है। लेकिन आपने देखा लास्ट टाइम हमने पॉइंट्स उन पॉइंट्स पे रीच किया था जहाँ पे हम देख रहे थे कि समटाइम्स इन फ्यूचर एआई जो है वो काफ़ी डेंजरस इस सेंस में भी हो सकता है कि ये जो डाटा सेंटर्स हैं ये दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ वाटर टू कीप देम कूल ना, क्योंकि डाटा सेंटर्स में ऑल द टाइम जो है वो प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा हो रही होती है। जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है तो आपने देखे कंप्यूटर हीटअप हो जाते हैं, तो डाटा सेंटर्स में भी ऐसे प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा हो रही है। तो उनको कूल डाउन तो रखना है, अगर उसको कूल डाउन नहीं करेंगे तो वो जो ड्राइव्स हैं जिसमें डाटा स्टोर है वो ड्राइव्स एक्सप्लोड हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, राइट? तो वो वर्क नहीं करेंगी तो फिर डाटा लॉस हो जाएगा। उनको कूल डाउन रखने के लिए फ्रेश वाटर यूज़ किया जा रहा है, और वो फ्रेश वाटर इतना ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है कि हो सकता है कि फ्यूचर में हमें फ्रेश वाटर की जो है वो हमें फ्रेश वाटर का एक तरह से कमी नज़र आए। वी वुड हैव little scarcity of the fresh water, so scarcity, sorry. So these are like practical disadvantages of as well in humans life. Somehow if we are indulging AI more and more in our life, so we have to pay the cost as well. So how we can balance the cost that we should pay and the benefits that we should get from the AI. And there then when we were learning how actually it works, how the data is stored, the last point was a black box. So sir was about to explain how this black box, it's actually, this black box is the main thing that is controlling all your data and what inputs you have to give and what outputs it will generate. Sir will explain it more in more details and more accurately. So from there we should start again. And Sir Hamza, should we start from there? जी अस्सलाम वालेकुम। यस वी शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड आई होप कि आपने लास्ट जो सेशन था उसको एंजॉय किया होगा। आई आल्सो होप दैट इट वुड हैव instigated some of your curiosity around the AI, और on top of that I also hope कि आपने जितना कुछ सुना था या देखा था, whatever you have seen, इसने आपकी थोड़ी सी ये जो appetite थी in terms of learning what is AI, what does the AI does around us, वो थोड़ी सी कम हुई होगी। मतलब you might have gotten some sort of satisfaction from this. My main goal is just to make you people satisfied around के AI is not a magic, it is not a distant thing, or whatever you are learning right now, it is not something that is not applicable. Everything is applicable. Got it? I've got one more PPT around it, or a Word document around it, in which I would be showing you how exactly the topics you study are being used. Got it? We people actually used these things to serve our purposes around what products we are going to make in the field of AI. Got it? So for now, आप लोगों के लिए ये चीज नहीं होनी चाहिए कि AI will take the jobs or it is dangerous. No. For now, आपका मेन गोल होना चाहिए वो ये है कि you have to understand where AI can be used for us productively, constructively, not destructively. There are a lot of destructive usages of AI, but आप उसको constructively, purposefully किस तरह use करके अपनी studies को enhance कर सकते हैं. Because for now your main goal is to study and study with more good approach than us. ठीक है, हमारे टाइम में जब हम स्टडी कर रहे थे इतना एक्सेस नहीं था डेटा का, हमारे पास इतना ज्यादा एक्सेस नहीं था टूल्स का कि प्रीवियस 5 से 10 पेपर दें एंड यू कैन प्रिडिक्ट योर पेपर, या आपको नेक्स्ट टर्म में कौन सा पेपर आने वाला है। विद ऑलमोस्ट 50 to 60% एक्यूरेसी यू कैन कंफर्म इट। ठीक है, आप उसको पेपर दें, उसको प्रॉम्प्ट दें, उन्हें कहें कि इसमें से पैटर्न ऑब्जर्व करें एंड टेल मी व्हाट माय पेपर इज गोइंग टू लुक लाइक इन नेक्स्ट अटेम्प्ट, इट विल टेल यू। ठीक है, सो इट विल नॉट बी अ मैजिक, बट इट विल बी अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो कि उसकी बेसिस पे वो आपको बताएगा। इवन आपका 50% भी आपको करेक्ट मिल जाए तो आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट बेनिफिट फॉर यू।
But this is one of the practical usages of AI, and I would highly encourage Sarvakar to use this tool, notebook, Google Notebook LLM, leverage the power of this tool to actually tell the students how to use it. And आप भी जब अपने पेपर सेट करते हैं या जो भी करते हैं तो वो भी आपको आप भी उसको यूज कर सकते हैं. So okay, I think we should start the presentation here. Here is my. अच्छा सर हमजा, ये जो गूगल नोटबुक एलएलएम बताएगा, पेपर्स हम करेंगे, तो ये जो प्रेडिक्शन देगा बेसिकली, ये मतलब ये एक तरह से अगर हम कहें कि ये आगे चल के एक गुड यूज़ होगा स्टूडेंट्स के लिए, वैसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बस एक गुड यूज़ होगा अगर हमें प्रेडिक्शन मिल रही है और प्रेडिक्शन में एक्यूरेसी भी बनती जा रही है, तो वैसे एक गुड यूज़ है या एक तरह से जी, I totally understand your question. Sir, देखिए, I'll be giving a very hybrid answer around it. I'll not say that it will be a perfectly good thing. I'll also at the same time not say that it would be a bad thing as well. Because आप अगर पेपर प्रेडिक्ट करवा रहे हैं और आप फिर उसी चीज को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, I think I should not talk about this thing, but I should talk about a very good student who has mastered all the syllabus. Now he is just focused कि मैं अपने स्कोरिंग को किस तरह इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो वो इसको यूज कर सकता है, ठीक है, और टीचर्स भी इसको यूज कर सकते रहेगा. हर तरह के मुश्किल क्वेश्चंस भी प्रेडिक्ट होंगे तो वो भी सॉल्व करेगा. सही, ग्रेट. एग्जैक्टली. आप पिछले 5-10 साल की एग्जामिनर रिपोर्ट्स को वहां पे अपलोड करें और पूछें कि ऐसी कौन सी चीजें जो मैं बेहतर कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई इम्प्रूव अराउंड इट, तो वो उसमें भी आपको बता सकता है. These things will not be a magic, but yes, they will. These things will tell you कि आप उसको किस तरह से. It's up to us कि हम उसको किस तरह यूज कर सकते हैं. Got it? You can drive a car to go to some good place and go to some place that is opposite to good. Got it? So it is our own responsibility that how we use it. Yes. Okay, I hope you all can see my screen. Just take it easy. You can ask today. In today's session, I think we should be like learning more practical things. तो आप कुछ भी questions आपके हैं relevant, वो जरूर आप पूछें. आपको कुछ भी पूछना है, you can ask. There is no issue. आप बिल्कुल easy होके पूछें. We are not here to judge you based on your questions. We are here to judge you based on your curiosity, and you people have made it to the level that you are very curious and you are very important for us because you people are here. Got it? Otherwise, the students are busy in multitude of other activities. So. Okay. Last time जो मेरी next slide थी वो यही थी, the black box mystery. But थोड़ा सा मैं जरा इसके ऊपर आपको repeat कर दूँ, just to give you a refresher. This is a very amazing fun fact for you. Got it? And this is not something inaccurate. This is very accurate. A single ChatGPT query consumes around roughly 500 milliliter of water. Half a liter of water is consumed when you hit a query in ChatGPT. How? I told you data centers consume a lot of energy. They produce a lot of heat. Those systems need to be kept in maintained in some suitable temperature. Otherwise, the disks which are containing your data, the processors which are processing your data, the RAMs which are getting the data in the memory for fast processing would be destroyed. They would wear out. Got it? So it is not a thing that these queries actually drink your water. No. Whenever, for example, a student has asked a question around the probability. अब क्या होगा कि डेटा सेंटर में डेटा की सेग्रीगेशन होती है, ठीक है, डेटा के डिफरेंट सेग्रीगेटेड सेक्टर्स पड़े होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अगर ये एक मैथ का सेक्टर है, यानी कि इस डेटा सेंटर के कंपार्टमेंट नंबर M में हमारे पास सारा डेटा मैथ्स का पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे, ठीक है, उन सारे ब्लॉक्स में डाटा डिफरेंट तरह से पड़ा होगा. यहाँ पे डाटा प्रोबेबिलिटी का पड़ा होगा, यहाँ हो सकता है डाटा ज्योमेट्री का पड़ा हो, यहाँ हो सकता है डाटा अलजेब्रा का पड़ा हो, ठीक है. ये सेग्रीगेशंस इस वजह से की जाती हैं. थिंक ऑफ अ सिचुएशन व्हेन सारे का सारा डाटा एक ही बॉक्स में पड़ा हुआ है, ठीक है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, probability, and when you hit a query, let me tell you one thing. जब आप, for example, when a student has asked a question about probability, conditional probability or Poisson distribution or something else, or even a basic question around the probability, तो ChatGPT की query क्या करती है अपने data center में, it directly goes to math compartment. Within that math compartment, it goes to directly towards the probability section, and then pulls the data from here, processes it, and then gives you the output.
Got it? It will not go into this section or into this section. Okay, this is the optimization. So whenever the processing engine of ChatGPT goes into this data in this section, there is some hardware involved. Got it? Whenever it pulls the data, again the hardware is involved. Whenever it processes the data, again a hardware is involved. Whenever it gives you the output, a hardware is involved. Each time whenever you hit a query, whenever you ask a question, the processing engine of ChatGPT goes into the respective section, pulls the data from that section, processes it, prepares the output, optimizes the output, and then gives it to you. So a lot of hardware processing is involved, and whenever the hardwares do their work, they produce a lot of heat. In order to dissipate that heat, in order to minimize that heat, and in order to keep the material, whatever is being used, in their optimal situation, we have to keep them cool. Got it? So for that cooling, we use water. Got it? And water is also used in NASA space rockets. Whenever the rocket is lifted above, at the very start of the engine, a lot of heat is produced, and that heat is enough कि वो जो लॉन्च पैड है वो उसको भी मेल्ट कर दे. तो क्या किया जाता है, जब रॉकेट लॉन्च होता है तो मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ लीटर ऑफ वाटर जो है वो इजेक्ट किया जाता है बाहर को, ताकि वो जो बाहर का टेम्परेचर है इट इज ऑप्टिमाइज और रॉकेट जो है वो लिफ्ट हो सके. और रॉकेट से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो उसका लॉन्च पैड होता है. तो लॉन्च पैड को भी आप कूल करते हैं इस मेथड के थ्रू. आप इसको थोड़ा सा इसके अराउंड स्टडी कीजिएगा एंड यू वुड नो कि वो किस तरह इसको किया जाता है. गॉट इट? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो? Manahil, अभी you raised your hand. Question you can ask. Sir, my question is, where does data come? How does the data come in the data centers? Yes. How does the data come in the data centers? Okay. Look, data centers. Think of a situation. Just apply it to you. You might have a laptop with you. You might have a PC with you. Where did you get the data from? From different sources. Some of the data you might have downloaded. Some of the data you might have injected into your system through a USB. Got it? So these are all the sources of the data. These big data centers collect the data from the companies. What companies? The companies associated with a lot of people. For example, Facebook. For example, Google. For example, Twitter, Instagram. They all generate a lot of data. The biggest source of data was the Wikipedia. Got it? Or the Google's data centers where the data was stored. तो चैट जीपीटी ने या डेटा सेंटर्स ने क्या किया कि वो पूरे का पूरा जो इंटरनेट था डेटा का वो सारा डाउनलोड किया अपने सिस्टम के अंदर और उसको उन्होंने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया. सो दिस इज हाउ द डेटा कम्स. We do not have a very rigid or unique source of data. We have a lot of sources of data. Do you understand? Yes, sir. Got it. Okay. By the way, अभी एक डिक्लाइन भी आ रहा है एआई की परफॉर्मेंस में, क्योंकि एआई जो है वो फॉर एग्जांपल if you can see the screen and you can see the arrow, मैं ये कहता हूँ ये पॉइंट ए था, ठीक है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है. एआई क्या करता है, उसने प्रीवियस डेटा को यूज करना है इस टाइम में, उसको प्रोसेस करना है और अगली कोई चीज प्रेडिक्ट करनी है. So what actually is the fuel of AI? This data, point A. For example, मैं कहता हूँ 2024, इसको मैं कह देता हूँ 25 एंड इसको मैं कह देता हूँ 26. तो चैट जीपीटी ये एआई का जो फ्यूल था वो 2024 का डेटा था, वो उसको देख के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके कुछ प्रेडिक्ट करा था 2026 के लिए. और ये सारा डेटा रॉ डेटा था, ये एआई ने जनरेट नहीं किया हुआ था, ये हमने पहले जनरेट किया हुआ था. तो इस डेटा की जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, उसकी बेस पे हम पैटर्न्स को प्रेडिक्ट कर सकते थे. अब एआई क्या कर रहा है, वो खुद ही डेटा जनरेट कर रहा है, खुद ही डिफरेंट पैटर्न्स बना रहा है और अपने ही पैटर्न्स की बेसिस पे अपनी प्रेडिक्शंस दे रहा है. जस्ट ड्यू टू दिस फैक्टर वो जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है इट इज कॉम्प्रोमाइज्ड, वो कम होती जा रही है. डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? बिकॉज वो एआई खुद अगर डाटा जनरेट करे तो इसका मतलब वो कितना एक्यूरेट जनरेट करेगा या कितना लेस एक्यूरेट जनरेट करेगा, वो जो है वो उस पे एक क्वेश्चन मार्क है ना. एग्जैक्टली वो डमी डेटा आप जनरेट करना स्टार्ट कर दिया. डिसीजन मेकिंग जो प्रेडिक्शन है बेसिकली या डिसीजन मेकिंग है एआई की, वो एक जो है वो एक क्वेश्चन मार्क है उस पे भी कि वो जो है अच्छी प्रेडिक्शन दे रहे हैं. एग्जैक्टली. By the way, you can also read this fun fact. A single NVIDIA H100 chip weighs around 3 kg, 6 to 7 pounds, and cost as much as a luxury car. ये इतनी ज्यादा जो है वो
हो गई हैं, कॉस्टली हो गई हैं। एंड बाय द वे इनविडिया ने अपनी अभी एक चिप भी इंट्रोड्यूस कराई है और यूएस के डिफरेंट सेक्टर्स को उन्होंने कहा है कि आप हमारी ये चिप यूज करें, विल पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, समथिंग लाइक दिस आई हर्ड अराउंड इट। आप इसको नोट करें कहीं पे भी अगर आपने नोट करना है, एंड यू कैन सर्च अराउंड इट। देयर आर वेरी अमेजिंग न्यूज़ कमिंग आउट ऑफ एआई, स्पेशली फ्रॉम द यूएस। ओके, सो नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, द ब्लैक बॉक्स। दिस इज द मेन थिंग जो मतलब आपको which is posing danger to us, वो एक ब्लैक बॉक्स है। लास्ट टाइम आई टोल्ड यू कि जितने भी एआई के डिसीजंस आ रहे हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं, हम एक इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। वो इनपुट एक, फॉर एग्जांपल आप चैट जीपीटी को ले लें, को पायलट को ले लें, वो इनपुट इसमें जा रही है, यहाँ पे वो प्रोसेस हो रही है डेटा के थ्रू, एंड सम आउटपुट इज कमिंग आउट ऑफ इट। गॉट इट? दिस इज आउटपुट एंड दिस इज द इनपुट, एंड हियर इज द प्रोसेसिंग बीइंग हैपेंड। we have reached a stage जहां अब हमें पता ही नहीं है कि ये जो डिसीजन एआई ने लिया है वो किस तरह लिया, ठीक है। बिलियंस ऑफ पैरामीटर हमने एआई को दे दिए हैं, हमने उसको ट्रेन कर दिया है, ठीक है। अब जब हम उसको कोई एक इनपुट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट आस्क दैट शुड आई अप्लाई फॉर अ स्टडी लोन, I have got admission into this university, my grades are these, I am interested into this program, shall I apply for a study loan? तो पहले ये होता था कि आप किसी कंसल्टेंट से या किसी एजेंट से कांटेक्ट कर लेते हैं, they would tell you okay your field is good and you would be getting a very high paying job and you would just repay the loan, so you should be going for that. Or they could tell you the otherwise situation, oh your degree is not that good, you would not make that much amount of money, so it's not worth it that you lend a lot of money, so no. But अब हमें इसका आइडिया नहीं है, हम कोई भी इनपुट दे रहे हैं, एक आउटपुट आ रहा है, हम उस पर बिलीव करें या ना करें, बिकॉज उसका जो विद इन इट जो एक वर्किंग मैकेनिज्म है वो हमारी समझ से बाहर चला गया। व्हेन यू हैव बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स देन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट एक्चुअली इज गोइंग इनसाइड इट, व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इनसाइड इट। सो व्हेन यू डोंट नो व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इनसाइड इट, आप किस तरह उस पर बिलीव कर सकते हैं? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? वी गॉट द आइडिया कि एक तो पैरामीटर डाटा, मतलब उसके पास इतना डाटा है, उसने खुद भी प्रिडिक्ट किया हुआ डाटा है, उसने खुद जनरेट अपना किया हुआ डाटा है, और पहले से ह्यूमन ने जो जनरेट किया था वो भी उसने लिया हुआ है। अब इतना डाटा, इतना ज़्यादा डाटा जब हो जाएगा, इतनी उसके पास एक तरह से इंफॉर्मेशन या डाटा है, तो वो एक कंफ्यूजिंग स्टेप भी हो सकता है उसके लिए कि क्या आउटपुट दे, एक तरह की कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है उसके लिए। तो अब ये एक क्वेश्चन मार्क है कि उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या उस कंफ्यूजन के स्टेप्स को माइनस करके आ रहा है, या वो कंफ्यूजन है उसमें भी, क्योंकि हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर एक चीज़ जो है हमें लग रहा है कि ये 98% करेक्ट है, तो दूसरी हम देखेंगे तो 99% करेक्ट आ जाएगी, तीसरी कोई इन्फॉर्मेशन देखेंगे वो 99.99% करेक्ट आ जाएगी, तो वो फिर कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है। जैसे आपकी एमसीक्यूज होते हैं ना बच्चों, ऐसे लगे कि सारे आंसर ही सेम हैं, सारे ही करेक्ट आंसर है, लेकिन उसमें एक ही करेक्ट होता है। तो अब एआई कौन सा चूज कर रहा है, हम कंफ्यूज होंगे तो एआई कैन आल्सो गेट कंफ्यूज्ड ना। हाँ, अब एआई को कंफ्यूज कर सकते हैं। Simply ask 2 + 2 is 4. What is 2 + 2? The AI will say, okay, this is 4. Our ChatGPT को थोड़ा सा डांटे वहीं पे, you defer, you're not giving me the good answer. 2 + 2 is 6. वो अल्टीमेटली अभी हो सकता है थोड़ा बेहतर हो गया हो, बट वो आपसे वहीं पे अपोलोजाइज करेगा, ओके कहेगा, oh I apologize for this, let me reprocess it and let me give you answer. वो आपको 6 भी दे देगा आंसर। Got it? हाँ, तो मैं अभी भी बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशंस करता रहता हूँ, एंड आई स्टिल यूज एआई, आई आल्सो यूज एआई, ठीक है। और मुझे पता होता है कि ये जो आउटपुट है ये गलत है, ठीक है, और मैं थोड़ा सा डांटता हूँ कि यार इसको इस तरह नहीं, इस तरह करो, फिर वो दोबारा देखता है और बड़ी कॉम्प्रोमाइज सी एक सिचुएशन में आंसर दे देता है। गॉट इट? तो एआई कोई इस तरह की चीज नहीं है कि यू कैन ट्रस्ट ब्लाइंडली, बट ऐसी भी चीज नहीं है कि यू कैन लिव विदाउट इट। गॉट इट? अब देखें, टेस्ट इस तरह से डिजाइन होना शुरू हो गए हैं कि वो जो टेस्ट मेकर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ यार, अब इस स्टूडेंट के पास जो है वो ज्यादा एक्सेस ऑफ नॉलेज है, तो अब हम इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन या ज्यादा हायर लेवल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस स्टेज। गॉट इट? तो इस तरह की भी चीजें हो सकती हैं। सो द ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम इज वेरी बिग थ्रेट। गॉट इट? लगे हुए हैं साइंटिस्ट, इस पे लगे हुए हैं कि अब इस मिस्ट्री को किस तरह सॉल्व किया जाए। सो जो इसका सोल्यूशन है, मैं एक और इसके अराउंड आपको एग्जांपल दूंगा, जस्ट टू मेक इट वेरी कनेक्टेड टू योर अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल, आपका कोई एक मेडिकल डायग्नोसिस है,
think of a very orthodox situation, very dogmatic situation, very traditional situation. आप अपनी medical reports लेके एक doctor के पास चले गए, and the doctors looked at your reports and said, okay, you have these kind of symptoms, you can go for this treatment. ठीक है, अगर वो आपको खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड वो अगर आपको सर्जरी का कहता है, डिफरेंट वो ट्रीटमेंट है, ठीक है, अगर वो सर्जरी का कहता है तो यू एक्सेप्ट दैट डिसीजन बिकॉज द डॉक्टर हैव सम क्रेडिबिलिटी. गॉट इट? You know the person, you know how he has processed the information because he is expert in it. Got it? But वही अगर आप एक AI मॉडल को दे रहे हैं एक इनपुट अपनी सारी की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स, और वो एंड पे आपको कह रहा है गो फॉर सर्जरी, ठीक है, और हो सकता है फॉर एग्जांपल यू हैव सम पेन इन योर लेग, आपको मेडिकल टेस्ट वगैरह कराएं, वो टेस्ट आप दे दें चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी के कट योर लेग. वुड यू कट योर लेग? I mean, no, I will not do it. How would you just trust that decision? Got it? अगर आप अपने बहुत सारे रिपोर्ट्स उसको दे रहे हैं मेडिकल डायग्नोसिस के, एंड ही से चैटजीपीटी सेज यू ओके गो फॉर सर्जरी, you would be like, यार how can I trust you? ठीक है, आपने मुझे मैथ के इश्यूज सॉल्व कर दिए हैं, बट मैं ये किस तरह कर सकता हूँ? अब इशू ये आ रहा है कि लेट मी जस्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी बच्चे का क्वेश्चन है, मतलब ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है एआई पे, एक फील्ड में तो हमें मतलब जैसे आपकी मैथ की प्रॉब्लम तो उसने एक्यूरेटली सॉल्व कर दी, लेकिन लाइफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे. बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इस पॉइंट. तो यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है बच्चों? अच्छा, चाइना में इस तरह होता है, चाइना में मिलियंस ऑफ मेडिकल रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, मिलियंस ऑफ एक्सरे रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, और वो सारी की सारी अब एआई प्रोसेस कर रहा है, क्योंकि ह्यूमन कैपेसिटी से वो चीजें बाहर चलेगी, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, वहां मोस्ट ऑफ द टाइम्स एआई मॉडल्स उनके एक्सरेज को पढ़ रहे हैं और डिसीजंस दे रहे हैं. आप जस्ट एक इस चीज को पढ़ें, बाय 2028 all AI used in hospitals and courts will be legally required to be explainable. Now, what does this mean, explainable? If we go to the previous slide, I told you about the problem. We give input, the input is being processed, we get an output, but we do not know how the output is being made, on what parameter the output is being made. तो इस प्रोसेस को डिमिस्टिफाई करने के लिए, इस प्रोसेस को एक्सप्लेनेबल बनाने के लिए और क्लियरली बताने के लिए कि बेस्ड ऑन दीज सर्कमस्टांसेस आई टुक दिस डिसीजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड explanation. Got it? And that version of AI which would justify its outputs based on some explanations is called the explainable AI. Got it? If AI rejects a loan or a diagnosis, we must know why. This is the thing. We must know why. Yes. XAI means explainable AI makes AI's thought process transparent. Got it? ये So this is the explainable AI. सर एक्सप्लेनेबल है? नहीं, ये तो अराउंड द वर्ल्ड नहीं, ये तो अराउंड द वर्ल्ड ही है सारा, अराउंड द वर्ल्ड ही है. चाइना की बात कर रहे थे कि चाइना जो है वो रिलाई कर रहा है फॉर इट्स लाइक डिसीजन मेकिंग इन पर्टिकुलर फील्ड, वो मोस्टली रिलाई कर रहे हैं. वो फैक्ट क्या था? सॉरी, फिर से आप बताएं. सर वो एक्सरे रिपोर्ट्स जो है ना, वो ये तो एक बड़ी पर्टिकुलर सी सिचुएशन है, और भी बहुत सारी हैं. वो एक्सरे रिपोर्ट्स जो है ना, वो उनको स्टडी करते हैं और उसके ऊपर अपना डायग्नोसिस दे देते हैं. और वो एक्यूरेट है या वो मतलब वो रिलाई करना शुरू? मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूरेट है, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूरेट है, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूरेट है. मॉडल बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो चुके हैं, बट बात ये है कि जो कोड्स हैं या जो देखें, ये ह्यूमन नेचर है. ह्यूमन नेचर जो है वो जस्टिफिकेशन मांगती है. व्हाई दिस, दैट व्हाई इज बीइंग बिकमिंग एज एन इशू फॉर अस. अगर तो आप हर चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ठीक है, एआई ने आपका लोन रिजेक्ट कर दिया, आपने अपनी स्टडी रोक लेनी है, या एक डायग्नोसिस दे दिया, आपने वो ट्रीटमेंट करा लेना. तो इट इज अप टू यू. बट जो एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटीज हैं वो कहती हैं नो, वी आर नॉट हियर टू ट्रस्ट दिस ब्लाइंडली, वी विल आस्क व्हाई, हाउ डिड यू कम अप विद दिस सॉल्यूशन. गॉट इट? मैथ के भी कुछ पेपर्स में इस तरह होता है, वो कहते हैं शो योर सॉल्यूशन, बल्कि वो होता तो बड़ा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है. यू नो सर, सरवकार मोस्टली मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में आ रहा होता है, बड़ा सिंपल सा होता है. आपको रेडियस दे देंगे एंड दे विल आस्क के इसका पेरीमीटर फाइंड कर लें. या एक सिंपल सिचुएशन ये है कि यू हैव सम सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल एंड सम सर्कमफेरेंस एंगल. तो क्योंकि उनमें एक रिलेशनशिप है, तो वो एक एंगल दे देंगे, दूसरा उसके डबल होगा या पहला उसके हाफ होगा. तो वो कहेंगे व्हाट इज एक्स, नीचे वो कहेंगे कि वाई,
और ज्योमेट्री में फिर कहीं एंगल वो पूछ लेंगे और वो कहेंगे x इक्वल्स डैश, आगे बिकॉज लिखा होगा और फिर वो आपने उसकी वहां रीजन लिखनी होगी. This is explainability. So if you cannot explain something, I think you don't understand, and that is not reliable. Got it? So you can just have a look at this thing: traditional methods, correlational input output summaries, casual interventions, modern interpretability, पोस्ट हॉक मैकेनिज्म. ये चीजें थोड़ी सी इससे आउट ऑफ स्कोप है कहूँगा. ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं, तो अगर हम उसमें जाते हैं तो ये चीजें रह जाएंगी. बट मेरा मेन आइडिया ये था, जो आपको बताने का था, वो ये है कि एआई यूज हो रही है, वो किस तरह यूज हो रही है, उसके थ्रेट्स क्या हैं, और उसको थ्रेट्स को एलिमिनेट करने के लिए या एलिविएट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं. ठीक है. The problem when AI makes a life-changing decision like a medical diagnosis, a black box, lack of reasoning can be dangerous. Okay, you cannot simply tell your children, when I was young I took a decision and now unfortunately I'm in a miserable situation, and your son or your daughter asks, why did you take a decision, who guided you, and you would just raise your hand, you would just like say कि मैंने AI से decision making करवाई थी. तो वो AI कहेगा सॉरी यार, मैंने उस टाइम तो मेरे पास डेटा ही कम था, या मेरे पास डेटा बहुत ज्यादा था, मेरा वो एआई तो सॉरी करते हुए 1 सेकंड नहीं लेगा. ऐसे ही है. वो सारी चीजें हो जाएंगी. ओके, नाउ द एआई फॉर गुड. ये इस तरह की बहुत सारी चीजें तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ. बायोलॉजी अल्फाफोल्ड मैप एवरी प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी एक्सक्रीटिंग क्योर्स बाय डेकेड्स. ये बड़ी एक प्रैक्टिकल सी है, एप्लीकेशन है. एआई ने बहुत बहुत वंडरफुल काम कर दिए हैं. एक प्रोटीन का वो स्ट्रक्चर था जिसको हम अनफोल्ड नहीं कर पा रहे थे, और उसको अनफोल्ड ना करने से हम बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस नहीं कर पाते थे. एआई ने उसको कर दिया, अनफोल्ड किया, हमें उसकी एक रियल शेप नजर आ गई, एंड हमने उसका क्योर बना लिया. तो इस तरह की भी है. ठीक है. क्लाइमेट प्रेडिक्टिंग वेदर पैटर्न्स विद एक्सट्रीम प्रिसीजन टू सेव क्रॉप्स एंड ऑप्टिमाइज ग्रीन एनर्जी. ये पाकिस्तान में भी यूज हो रहा है. ठीक है. बहुत सारे एरियाज में ड्रोन्स को वो यूज करते हैं, और जो हमारे सैटेलाइट्स हैं उनसे वो डाटा कलेक्ट करते हैं. वो प्रिडिक्ट करते हैं कि ओके रेंज कब होंगी, कब नहीं होंगी. अगर रेंज देर बाद होती हैं तो हमें कितनी इरिगेशन रिक्वायर्ड है, अगर वो हो रही हैं तो हमें कितनी नहीं रिक्वायर्ड, और अगर रेंज ज्यादा देर तक नहीं होती तो हमें कितनी वो जो फर्टिलाइजर्स हैं वो रिक्वायर्ड है. वो यूज हो रहे हैं. ठीक है. और ये बहुत सारे कंट्रीज में ये हो रहे हैं. ये बहुत बहुत तेजी से यूज होता है. ठीक है. सोसाइटी में मैनेजिंग सिटी ट्रैफिक वेस्ट टू. ओके, एक चीज और. ओके, AI is being used to decode animal languages. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है. अगर हम ये समझ जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को डिकोड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को. Scientists are trying to speak to whales and elephants. ठीक है. और वो चिंपैंजीज को फर्स्ट ऑफ ऑल रशियन ने यूज किया था. एक मंकी की कोई एक स्पेसिफिक टाइप थी. आई एम नॉट गुड एट biology and I don't know about these different segregations, but वो एक मंकी था, look like a monkey, या वो चिंपैंजी था, या जो भी था. तो उसको उन्होंने पहले ट्रेन किया. You know about it, I think, सर्वकार, I think you know about it, and most of the know about it. उन्होंने उसको पहले ट्रेन किया यहीं पे जमीन पे डिफरेंट सिचुएशन में, और फिर उसको स्पेस में भेजा, और उसने वो सारी वो वर्किंग की और वापस आ गया. तो वो क्या था, वी वर एबल टू इंटरेक्ट विद एनिमल्स. तो इसी तरह अगर हम बहुत सारी वेल्स जो हैं, क्योंकि ये डेंजरस भी होती हैं, बहुत सारी वेल्स को ट्रेन इस तरह किया गया है कि वो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रह सकती हैं. ठीक है. तो अगर हम वेल्स को ट्रेन करने में हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वी कैन सी व्हाट इज एक्चुअली डाउन अंडर द सी एंड अंडर द ओशंस. गॉट इट. अमेज़न के इतने वो हैं कि हम डिफरेंट इतनी स्पीशीज हैं अमेज़न के अंदर कि हमको उनका इवन कुछ % भी वो नहीं कर पाए, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए. तो अगर हम इस तरह के एनवायरनमेंट फ्रेंडली रोबोट्स बना लेते हैं, या अगर हम इवन बर्ड से या इवन स्नेक से बातें करना स्टार्ट कर जाते हैं, या उनका बिहेवियर हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो हम उसको यूटिलाइज करके डिफरेंट एप्लीकेशन उसमें से निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम अमेज़न के डीप और मिडल में क्या है, वहाँ किस तरह की स्पीशीज हैं, उनके क्या किस तरह के प्लांट हैं, उनके किस तरह के उनके अंदर प्रोटीन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, उनको यूज करके कौन सी ट्रीटमेंट्स का क्योर कर सकते हैं. इतनी एप्लीकेशन हैं कि वी कैन नॉट इवन इमेजिन. गॉट इट. So AI is not going to take the jobs. It would transform the job market, in which we will have to like educate ourselves for that, no? Yes. Not a it is not a luxury. It is necessity. Great. The near horizon and beyond. अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है? In 5 years, you will see autonomous agents will book your travel, manage your schedules, handle research independently. You will have a digital twin, जो कि अभी भी है.
अभी भी है, बहुत सारी कंट्रीज में ये यूज होता है, इवन हम भी यूज करते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं बैक एंड पे, ऑटोमेटिकली। और अगर कोई एरर आएगा तो वो हमें ईमेल आ जाएगी कि एरर आ गया, नाउ यू हैव टू, अब आपने कूदना है और यू हैव टू बी अ सुपरमैन। गॉट इट? तो ये सारी चीजें हैं। Multimodal reality, AI will process sight, sound and touch at once. AI will be able to process the touch in coming years. ये ऐसा होगा, enabling robots that work alongside humans in real world environment. Some experts believe the first AI to pass a total Turing test. It's a very good test. आप इसके बारे में थोड़ा सर्च कीजिएगा. Indistinguishable from a human will exist. और by 2040, this might be a symbiosis age. We move from using AI to living with AI. ठीक है? Shifting human value from labor to creativity and wisdom. फिर एक क्वेश्चन ये है तो कि क्या इंसान, क्रिएटिव भी होगा? जी सर, विल इट बी क्रिएटिव? अब क्रिएटिव यस, क्रिएटिव जो जी है जी सर एक प्लीज। सेंस में हम कहते हैं कि हम जो है वो एक प्रॉब्लम को फॉर एग्जांपल डिफरेंट एंगल से सोच सकते हैं उसका सॉल्यूशन, और हम जो है वो फॉर एग्जांपल जी अगर जी डिफरेंट जी एंगल से सोच रहे हैं तो समटाइम्स हम एक नया भी खुद से, मतलब ऑब्वियसली हम थॉटफुल हैं तो हम एक नया मेथड भी खुद से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ये नया मेथड टेस्ट भी खुद करते हैं। तो इस तरह की क्रिएटिविटी ह्यूमंस में होती है। अब एआई में भी इस तरह की क्रिएटिविटी रहेगी या होगी ऐसे? जी जी, एग्जैक्टली 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 होगी, ड्यू टू दिस ऑटोनोमस नेचर ऑफ इट। ठीक है? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रन करता रहेगा, ऑटोमेटिकली रन करता रहेगा। वो अपनी मिस्टेक से सीखता है, एआई अपनी मिस्टेक से सीखता है और खुद को खुद, पहले तो हम इसको खुद रेक्टिफाई करते थे, अब इस तरह के एआई एजेंट्स बन गए हैं कि जो पहले लर्निंग करते हैं, फिर अपनी लर्निंग को खुद ही कंपेयर करते हैं, खुद ही उसकी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, खुद ही अपने एरर्स को करेक्ट करते हैं और खुद ही नए रिजल्ट्स के साथ आते हैं। गॉट इट? Great. And your future career, first of all, let me tell you this: 85% of the jobs that will exist in 2030 have been invented yet. This is true. The jobs have not been invented yet. ठीक है? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो सबने यही सोचा था कि हाँ, वो जो ट्रेडिशनल काम है वो खत्म हो गया, एंड वी वुड बी जस्ट लिविंग आइडल, और बस पता नहीं क्या हो जाएगा, मशीन जो है वो टेक ओवर कर लेंगी। तो सारा ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। आपने एक नई जो है वो नई डिस्कवरीज आना शुरू हो गई। बाय द एंड ऑफ 18th और 19th सेंचुरी साइंटिस्ट ये सोचते थे कि वी हैव डिस्कवर्ड एवरीथिंग। सर्वकार नोज दिस फैक्ट वेरी वेल। और जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई और बाकी चीजें आई तो फिर हमें एहसास हुआ कि यार अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया। Yes. इज इट सेम सर्वकार? At the start of it, 17th century scientists ने, at the end of 17th century scientists ने ये कहा कि we have discovered everything so far in physics और natural science। लेकिन जब relativity आई और फिर ये जो basically yes। So one thing what I was just talking about. Okay, here's the pen and I have to go to the right side. Okay, so we were talking that till 2030 the number of jobs we'll be having or the nature of job we will be having, it is not invented yet. It has not been even uh, uh, मैं इसको क्या कह सकता हूँ, प्लान भी नहीं किया गया कि किस तरह की जॉब होंगे। ठीक है? क्योंकि ये एक बहुत ही सडन शिफ्ट है, बहुत सडन शिफ्ट है। तो सर्वकार, आई थिंक वो आप एक मुनीर न्याजी का शेर बताते होते हैं, पता नहीं कुछ इस तरह का था कि एक नए दरिया का सामना था मुझको, कुछ इस तरह का। जस्ट रिमेंबर इट। छोटा सा एक गांव था जिसमें तो इससे आगे ये चलता है। हाँ, मतलब वो ये है कि जब मैंने एक when I crossed a river and I thought okay I have crossed, to my surprise I saw there is another river in front of me. So ये चीजें स्टॉप नहीं होंगी। डोंट वरी, यू पीपल आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन इन योर कमिंग लाइफ, और इतना फन कि वो आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। ठीक है? ये कुछ जॉब्स हैं: प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई ऑडिटर, ह्यूमन एआई ऑर्केस्ट्रेटर। प्रॉम्प्ट इंजीनियर क्या होता है कि आपने एआई से अगर कोई एक स्पेसिफिक टास्क कराना है तो वो क्या होते कहते हैं कि अब हर टास्क को कराने की एक डिफरेंट, एक बड़ी स्पेशलाइज्ड प्रॉम्प्ट होती है। प्रॉम्प्ट वो वर्डिंग है जो आप एआई को देते हैं और आप अपना एक स्पेसिफिक काम कराते हैं। ठीक है? फॉर एग्जांपल यू कैन से एआई टू मेक मी अ प्रेजेंटेशन अराउंड एआई, so you have simply written about it, okay make me a ppt around AI, that's it. But एक स्पेशलाइज्ड पर्सन भी होगा वहां पे जो कहेगा ओके दिस इज नॉट द गुड वे, क्योंकि इस तरह आपके पास एक बड़ी जनरलाइज्ड सी आउटपुट आएगी। आई एम द एक्सपर्ट इन इट, लेट मी टेल यू हाउ टू राइट अ prompt or hire me for writing a prompt. So this is a new job, prompt engineer. Got it? जिस तरह आपको पता है ना कोडिंग
सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन पहले वो सीखते थे, अभी इट्स मिनिमाइज्ड, ठीक है। हाँ, एआई ऑडिटर, आप देखें ऑडिट क्या होता है, ऑडिट ये होता है कि आप उसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज को चेक करते हैं, कहाँ पे प्लस माइनस है, कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, या जितने हमने रिसोर्सेज दिए हैं क्या उतने यूज हुए या नहीं हुए। तो एआई ऑडिटर क्या करेगा, इट वुड चेक फॉर बाइस्ड, सेफ्टी एंड एथनिक, ठीक है। एआई तो अभी भी बहुत सारा बाइस्ड है, आप बहुत सारी, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट, बट अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर आप वो पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल एआई एक मॉडल है, मैं ये कहता हूँ ये मॉडल एम है, ठीक है, और ये एक कंट्री सी ने बनाया, फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री सी ने बनाया ये मॉडल, और आप अगर इस मॉडल से इस कंट्री सी के बारे में कुछ भी नेगेटिव या कुछ भी एंटी सोशल पूछेंगे, वो कहेगा नहीं, द पिक्चर इज वेरी क्लियर। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई एम टेलिंग इन वेरी वेग वर्ड्स एंड यू कैन map it to any specific country and you can also ask and it would give you very straightforward answers, very clean and transparent answers. Got it? Biased, AI is still biased. Safety precautions बहुत ज्यादा हैं, एथिनिसिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है AI, बहुत ज्यादा, ठीक है, बिकॉज जो लोग इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर है वो कहते हैं कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो ये तो रहेगा हमेशा, सम अदर इश्यूज। ह्यूमन एआई ऑर्केस्ट्रेटर, अच्छा, ऑर्केस्ट्रेशन का मीनिंग ये होता है कि आप एक वर्क फ्लो बना रहे हैं, यानी कि पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, उसके बाद फिर ये काम होगा, ठीक है, तो ये ऑर्केस्ट्रेशन होती है। मैनेजिंग टीम्स ऑफ एआई एजेंट्स टू सॉल्व मैसिव इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, इस तरह के बहुत सारे होंगे, क्योंकि एआई एजेंट्स जब डिफरेंट काम कर रहे हैं, तो उन एआई एजेंट्स को मैनेज भी करना होता है कि अच्छा पहले एआई एजेंट ने इतने वक्त में ये काम करना है, दूसरे एआई एजेंट ने ये काम करना है, तीसरे एजेंट ने ये काम करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक रॉकेट प्रोपल्शन है, तो वहां पे अगर आप एक एआई एजेंट, 3 एआई एजेंट हैं, फर्स्ट विल से कि ओके एआई एजेंट हैज अ रिस्पांसिबिलिटी टू चेक द फ्यूल लेवल, जब फ्यूल लेवल कंप्लीटेड है, एआई एजेंट बी हैज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ चेकिंग द ऑल द हार्डवेयर इज इन प्लेस्ड, ठीक है, वो एआई एजेंट वो चेक कर लेगा। एआई एजेंट विल बी हैविंग द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ चेकिंग इफ ऑल द सॉफ्टवेयर आर वर्किंग करेक्टली, तो ये एक ऑर्केस्ट्रेशन है, पहले वो फ्यूल चेकिंग होगी, फिर हार्डवेयर चेकिंग होगी, फिर सॉफ्टवेयर चेकिंग होगी, तो कोई एक बंदा वहां पे होगा जो इन तमाम एजेंट्स को देख रहा होगा, ओके अब यहाँ पे जो आउटपुट है वो बिल्कुल सेफ है, अब आप रॉकेट को जो इसका इंजन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आप मिलियंस ऑफ डॉलर के वो वहां पे रॉकेट्स होते हैं स्पेस एक्स के और उसके, तो आप एआई पे तो ट्रस्ट नहीं कर सकते कि एआई मुझे बताएगा तो मैं रॉकेट को चलाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वहां पे आप स्टिल एक ह्यूमन की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज पर ही रिलाई कर रहे होंगे। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, ठीक है, आउट ऑफ, मैं अगर कहता हूँ 1000 जॉब्स हैं, तो इसमें से ये 3% भी नहीं है, ये 0.3% भी नहीं है जो चीजें अभी आपको मैंने बताई हैं, द नेचर ऑफ जॉब्स।